students, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. So what we are going to study, we will be definitely studying for the 6th, 7th and 8th Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRMO and your school examinations. We are studying motion and measurement of distances. This is our chapter 2 and we have already covered the 3 lectures. This is the 4th one, and in this lecture we are going to study about the motion and all types of motions, right? So this will be an interesting chapter, right? And you know all that this team will be helping you in achieving all your goals related to your school examinations and the Olympiads level. Now if you want to study for get the study material or DPPs, you have to join our Telegram channel, and for that you have to go on Telegram app. You have to write the code for your class, right? This is the lecture for class 6, so your code will be TTB06. All right, write it out and then join the channel. Then you will be getting the access for the DPPs and study material. All right, and the important thing I wanted to tell you is this. This is one of the very much important for those students who really want to crack the Olympiads or really want to strong their foundation. So this is important. You have to go on this website www.talkingtextbooks.in. On that website you will be getting different types of packages, all right, depending on your class. For various classes there are various packages. Such type of packages will be there. अब आपको वहाँ पर क्या करना है? You have to go there. You have to choose the package whichever you want to choose, and see, you can see all the things you are getting in that package. Like you will be getting comprehensive study material, you will be getting recorded and live classes by the TTB experts, you will be getting homework submission feature. That means you are going to submit your homework through the Google Classrooms. Alright, you will be getting access to the bi-weekly quizzes. That is important so that you can know which part of the lecture is very much easy for you and which was very much hard for you. And the 5th is periodic test papers. You should know which monster you are fighting, right? That's why you should know all the features about the competitive exams you are going to fight, like what level of questions you are getting there, how much questions you will be getting there, and how to deal with such questions with the given time. That's all you're going to very much learn in the periodic test papers. Now all you have to do is to click now, buy now definitely, and then you will be forwarded on this page. On this page you can see this is the total cost, 9,000. If you write code CYLIVE, if you write CY live, then you will be getting 30% discount, that is 2,700 will be deducted from the total amount, and the amount will be 6,300. that is the total cost of the package you have chosen. Now what you have to do is to click on buy package and you can choose these options and you can pay the cost, right? If you have any query regarding anything, regarding how to choose it, even if it's suitable for you or not, if you want to resolve your query, you can note down this number and call us on this number. Your all queries will be resolved there. Even अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सारी जो features हैं ये आपको नहीं चाहिए, even you want to test yourself that where you stand, right? तो you can do that too. हमारे जो packages हैं उसके अंदर test series का package भी available है. You can go there, you can write this code on that package too. You will be getting 30% discount on that package too. Alright, so this is the important thing for the people who really want to crack the exam or who really want to study hard. Alright, now let's take out your copies and books and promise yourself you will be watching the whole lecture. You will be practice all the questions, you will be learning and noting down all the important points, and you will be revising. That would be the promise, and it's making so long, right? Why so? Because for a smart student you must implement a very good strategy for studying. Alright, so this is our 4th lecture, that is motion and its types. ठीक है, हम लोग सारे motions को पढ़ेंगे and we will be seeing what is motion in itself, right? And this will be the thing. We will be learning motion, we will be learning rest, and we will be learning the types of motion. That's the today's topic. अब मैं आपको बताती हूँ what is rest. Rest तो सबने सुना होगा भाई, rest का मतलब होता है आराम करना. जैसे ही rest का नाम तुम्हारे दिमाग में आता है
क्या आता है कि भाई जाके बैठ जाओ, जाके सो जाओ, मीन्स रेस्ट करना, आराम करना, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में दिस इज़ नॉट रेस्ट। रेस्ट का मतलब है फिजिक्स की लैंग्वेज में दैट यू मस्ट नॉट चेंज योर पोजीशन, ठीक है, वो रेस्ट होता है। इसका मतलब आप जिस जगह बैठे हुए हैं आप उसी जगह पर बैठे रहेंगे, ठीक है। टाइम बढ़ता जाएगा मीन्स टाइम विल मूव ऑन बट यू विल बी सिटिंग ओनली देयर। तो इसका मतलब यू आर नॉट चेंजिंग पोजीशन, दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट राइट नाउ। डेफिनेटली आप लोग एक जगह बैठ के पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आप लोग एक जगह बैठ के पढ़ रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग पोजीशन, दैट मीन्स यू आर इन द रेस्ट स्टेट, राइट। तो फिजिक्स में हम लोग रेस्ट स्टेट उसको बोलते हैं जिसमें हम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होते हैं, ट्रीज। वो जिस जगह पर ग्रो करते हैं तो ग्रो एट दैट द सेम पोजीशन, है ना, वो मूव नहीं करते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं, दैट मीन्स दे आर ऑलवेज एट द रेस्ट स्टेट। पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आराम ही कर रहे हो, राइट, वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी वेरियस फोटोसिंथेसिस एंड ऑल बहुत सारी वेरियस प्रोसेसेस करते रहते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, CO2 इनहेल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले जाएंगे कि दैट दे आर इन द रेस्ट स्टेट, ठीक है। यू कैन सी सच एग्जाम्पल्स। आपका घर जो कि ऑलवेज वहीं पर है जिस जगह पर वो ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स इट्स इन द सेम पोजिशन, इट्स एट रेस्ट मोड। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time. That means कि भाई कोई भी चीज़ अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करती, किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट का मतलब है किसके बेसिस पे, किसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि भाई जैसे हमारा घर है, ठीक है, अपने आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो पोजीशन चेंज नहीं करता है, उनके कंपैरिजन में पोजीशन चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स इट इज़ एट रेस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। का मतलब क्या है कि भाई टाइम तो स्पेंड होते जा रहा है, टाइम तो कंटिन्यूसली मूव करते जा रहा है, बट जो घर है वो वहीं की वही है, दैट मीन्स इट इज़ एट रेस्ट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग रेस्ट का मतलब सिर्फ आराम ही नहीं समझेंगे लाइक दिस कैट, no, it is not rest. Rest is like you do not change your position, that is rest. So whenever you are sitting at a point, ठीक है, at a position and you study for 3-4 hours continuously, 3-4 hours and you do not move at all, that means you were and in the rest state for the 4 hours. इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम कर रहे हो, ठीक है, उसका मतलब ये है यू आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन। बट व्हाट विल हैपन, व्हाट विल वी से इट इफ वी चेंज आवर पोजीशन। अगर हम अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर इन द मोशन स्टेट, राइट। कभी भी किसी भी मोमेंट पे इफ़ यू आर चेंजिंग योर पोजीशन, दैट मीन्स कि भाई आप मोशन के स्टेट में हैं। यहाँ पर पोजीशन का मतलब आप ये मत समझिए कि आप बैठने के स्टाइल्स को पोजीशंस बोल रहे हैं, नहीं। पोजीशन चेंज करने का मतलब है यू आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट विद कंपैरिजन टू द surrounding, you are moving, alright, you are changing position, that's called the motion. For example, I am moving right now, that means I am changing positions, that means I am in the state of motion, right. So this is the thing, this car is moving and it is continuously moving, that means it is in the state of motion. Now see, a body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to the surrounding. Surrounding means with respect in comparison to the environment around that object, ठीक है, और with respect to an observer with the passage of time. Now see, observer का जो केस है वो भी मैं आपको बताऊंगी, it would be a very much nice example. But first see what is the motion. If you are changing position, that means you are in motion state, right. जैसे ये बर्ड फ्लाई आउट कर रही है, सो दिस इज़ इन मोशन टू, दिस कार इज़ इन मोशन टू, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन का स्टेट, दैट मीन्स द थिंग्स आर मूविंग, द थिंग्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन, ऑलराइट। नाउ सी, जब हम मूव करते हैं तो फिर या फिर किसी चीज़ को मूव करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब इट वुड बी एन अगेंस्ट फोर्स होता है। ये जो फोर्स होता है इसे हम क्या बोल सकते हैं, इनर्शिया बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट एक्चुअली एन फोर्स बट इट कैन बी टेकन एज अपोजिशन, अ रेजिस्टेंस, राइट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि वाई इट इज़ सो मच हार्ड
to move a very much big object, a heavy object you can say, and why it is so much easy to move and lightweight object. ऐसा क्यों होता है? See, this is a very heavy box, ठीक है, and this boy is pulling out, so that means boy is applying so much force on this box to move it, राइट. सो जब भी हम किसी भी हैवी चीज़ को मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं, तो हमको भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब रियली में बहुत ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है. बट इफ़ वी वांट टू मूव अ वेरी मच लाइट वेट ऑब्जेक्ट, तो हमें बहुत ईजीली मूव हम उसको करवा सकते हैं. वाई इज़ इट सो? बिकॉज ऑफ द टर्म इनर्शिया. हम इसको देखेंगे. इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये हर ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है. हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है. इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन मोशन. दैट मीन्स इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, ठीक है, तो उसको वो अपने आप से मूव नहीं करने लगेगी. वो रेस्ट में है, इट विल बी इन द रेस्ट, ठीक है. कब तक वो रेस्ट में रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दे, ठीक है. एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद दी अ वेरी मच अ कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, तो वो खुद से रुक नहीं सकती. उसको रोकने के लिए वी मस्ट अप्लाई सम फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी रेस्ट में रहने वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई किया जाए. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है. तो वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई इज दिस इवन हैपनिंग? क्यों एक बॉडी अपने आप से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती? बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया, ठीक है. इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. मतलब हमारे अंदर इज द रेजिस्टेंस. हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो रेजिस्टेंस अवेलेबल है जो कि खुद से मूव नहीं करने देता, ठीक है. एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? द इनर्शिया, ठीक है. अब आपको समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इनर्शिया में होना ही चाहिए. मीन्स इट्स अबाउट द इनर्शिया, ठीक है. नंबर 1, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इटसेल्फ ड्यू टू इनर्शिया. इनर्शिया की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस दैट इज इन ऑल द ऑब्जेक्ट, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपने आप अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, अ बॉडी विल ओनली चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. इसका मतलब बिना फोर्स के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के इट विल नॉट चेंज, बिकॉज उसके अंदर का रेजिस्टेंस, उसके अंदर का इनर्शिया उसको हेल्प करेगा नॉट टू मूव, ठीक है. उसको अपनी रेस्ट में ही रहना है, उसको अपना स्टेट में ही रहना है, ठीक है. लेकिन अगर उस इनर्शिया को फाइट आउट करने के लिए कोई फोर्स अगर लगाया जाए, सो इट विल चेंज, बिकॉज अ वेरी मच फोर्सेस इज फोर्सिंग इट टू मूव ऑन, फोर्सिंग इट टू चेंज इट्स स्टेट. तो कोई भी बॉडी अपने आप से मूव नहीं करती, कोई भी बॉडी अपने आप से स्टॉप नहीं होती अनलेस एक फोर्स लगाया जाए. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. वो हम अगले मतलब आने वाले कुछ क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ेंगे. बट आपको इतना समझना ज़रूरी है कि अभी हमने समझा व्हाट इज़ रेस्ट, अभी हमने समझा व्हाट इज़ मोशन, फिर हमने ये रीज़न समझा कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होती है तो रेस्ट में ही क्यों रहती है, वो अपने आप से मूव क्यों नहीं होती, और कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही क्यों करती है, अपने आप से रुक क्यों नहीं सकती, स्टॉप क्यों नहीं हो सकती. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द रीज़न दैट इनर्शिया इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन. मोशन ऑफ अ बॉडी अकर्स ओनली वैन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट. मोशन तभी होगा जब कभी फोर्स अप्लाई होगा. इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट विल नॉट बी एनी, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इट्स स्टेट, राइट. तो विदाउट फोर्स नो चेंजेस एक्सेप्टेबल देयर. नो मोशन कैन अकर्स इटसेल्फ विदाउट फोर्स. कोई भी मोशन बिना फोर्स के बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है. सो दीज आर द पॉइंट्स, दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. Take a screenshot of it. Now next move on to that कि भाई जो रेस्ट होता है और जो मोशन होता है, क्या ये डिफरेंट टर्म्स होते हैं, क्या ये बिल्कुल सेपरेट टर्म्स होते हैं, या फिर हम इन दोनों को रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं. देखिए, रेस्ट
तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है और इससे आप समझ भी जाएंगे कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ दैट रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दीज आर नॉट द सेपरेट टर्म्स, ठीक है। अब देखो क्या, अभी आप बैठे हुए हो राइट एंड यू आर सीइंग द वीडियो। अब आप देखिए, आप अभी रेस्ट मोड में हो, अगर मैं आपको बोलूँगी यू आर चेंजिंग पोजीशन, आप बोलेंगे नो बिकॉज यू आर सिटिंग एंड यू आर वॉचिंग द वीडियो, सो यू आर नॉट चेंजिंग पोजीशन, यू आर एट रेस्ट। बट किसके लिए आप रेस्ट पे हो? आप रेस्ट पर हो आपके फ्रेंड के लिए जो आपके उस वक्त आपके रूम में प्रेजेंट है, राइट, उसके लिए आप बैठे हुए, वो आप बोलेगा येस यू आर सिटिंग। लेकिन अगर उसी फ्रेंड को हम मून पर भेज दें, ठीक है, somehow just imagine it कि वो मून पे चला गया and now from moon he is seeing you, तो वो बोलेगा you are in motion. Why? Because earth is in motion. आप ऑलरेडी अर्थ पर हैं, ठीक है, आप रेस्ट पर हैं, बट अब क्या हो रहा है, अब ऑब्जर्वर चेंज कर दिया है, तो दैट मीन्स कि भाई ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर है या फिर मोशन पे है। एक ऑब्जर्वर के लिए तो वो रेस्ट पर हो सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में भी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल व्हेन वी ट्रैवल थ्रू दी ट्रेन, ठीक है, तब क्या होता है, जब आप ट्रेन के अंदर होते हैं, यू आर एट रेस्ट, यू आर सिटिंग, राइट, तो आप बोलेंगे दैट यू आर नॉट मूविंग, एक्चुअली में आसपास का सराउंडिंग इज मूविंग, इट्स चेंजिंग पोजीशन, दैट यू कैन से, राइट। बट अगर जो स्टेशंस पे लोग खड़े हुए उनकी बात करें तो दे विल से कि भाई ट्रेन मूव कर रही है, दैट मीन्स उसके अंदर बैठा हुआ पर्सन भी मूव कर रहा है। बट आपके बगल वाला पैसेंजर आपको बोलेगा वी आर एट रेस्ट, वी आर सिटिंग, वी आर नॉट चेंजिंग पोजीशन, सो वी आर एट रेस्ट। सो दैट मीन्स कि भाई आपका पोजीशन एंड आपका ऑब्जर्वर आपको अलग अलग तरीके से परसीव कर सकता है। एक ऑब्जर्वर आपको बोल सकता है यू आर एट रेस्ट, एक ऑब्जर्वर आपको बोल सकता है यू आर इन मोशन, एंड आप सोचेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि वो किसके लिए रेस्ट पर है एंड मोशन पर है, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जर्वर। सो आप एक ही मोमेंट पे किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर हो सकते हैं, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए आप मोशन में हो सकते हैं एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है। तो ये जो है इससे हम पता कर सकते हैं कि भाई जब आप एक ही टाइम पर दो अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए रेस्ट पे भी हो, मोशन पे भी हो, दैट मीन्स दीज बोथ टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो देखेंगे मोशन इज रिलेटिव रेदर देन एन एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म्स मीन सेपरेट टर्म, इट इज नॉट अ सेपरेट टर्म, ठीक है। दीज बोथ आर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. An object may be in motion with regard to another object, but it may be stationary with respect to a third object. That means किसी और एक observer के लिए you can be in motion, ठीक है, और एक और observer, another one say, and you can be in rest for that observer. तो it's depend कि आपका observer आपको कहाँ से observe कर रहा है. Or just because of that you can say that a specific body person is at rest, specific object is in motion, you can say that, ठीक है. तो आपको बिल्कुल भी डरने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है. And you have to understand that these are not the absolute, these are not the separate terms, ठीक है. These are related to. Now see, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो अर्थ रोटेट कर रही है इट इज़ इन मोशन. आप बोलेंगे बिल्कुल अर्थ इज़ इन मोशन राइट नाउ, सही बात है. बट आप मुझे ये बताइए कि जब आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स आप एट रेस्ट. आप तो बोलोगे येस आई एम इन रेस्ट, बिल्कुल मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ. लेकिन आप ये बात भी जानते हैं कि अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है. इसका मतलब कि आप सचमुच में मोशन में हैं, लिटरली. भले ही आप अपने लिए बैठे हुए हो, आप अपने आप को प्रूव करवा पाओगे भाई मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ. लेकिन अगर कोई और आपको ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द मून, लेट्स से कोई एलियन मून पे बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए आप मोशन में होंगे बिकॉज अर्थ इज मूविंग. वो आपको बोलेगा कि नहीं आप तो मोशन में, आप झूठ बोल रहे हैं. आप बोलेंगे मैं बैठा हुआ, मैं रेस्ट पे हूँ. सो इट इज़ सो मच मैसी, बट
आपको डिपेंड करना है कि आप कौन से ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर हो और कौन से ऑब्जर्वर के लिए मोशन पे हो, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, यानी मोशन और रेस्ट हम बोल सकते हैं किसके ऊपर डिपेंड होके, ऑब्जर्वर पे डिपेंड होकर, ठीक है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू से थिंग्स। नाउ सी, हमने अब रेस्ट सीखा, हमने मोशन सीखा, हमने ये भी सीखा, ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स कि भाई कितने तरीके के मोशन होते हैं। मूव तो सभी करते हैं, मूव अर्थ भी कर रही है, मूव बर्ड भी कर रही है, मूव तुम लोग भी करते हो अपने घर से बाहर निकल कर, खेलते वक्त, मार्केट जाते वक्त, यू डू मूव, राइट। ये सभी चीज़ें, मूवमेंट तो हो रहा है, बट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं, लेट्स सी दैट। नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी लीनियर मोशन, और इस लीनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। जैसे तुम्हारे 2-3 नाम होते हैं ना, एक निक नेम होता है, एक रियल नेम होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरीके से लीनियर मोशन के भी 2 नाम है। पहला तो लीनियर मोशन खुद, दूसरा उसका क्या नाम है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, दैट इज द लीनियर मोशन, दैट्स इट, ठीक है। अगर कोई सीधे सीधे मूव कर रहा है, ठीक है। अब नाउ यू डिसाइड कि भाई लेट्स से कि तुम मार्केट जा रहे हो और यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड दैट मीन्स यू आर वॉकिंग स्ट्रेट, राइट। अगर आप स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन द लीनियर मोशन, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ये है, लाइक वेन एवर यू मूव ऑन रोड, लेट्स से इन द कार और इन दी ऑन दी बाईसाइकिल, या फिर आप खुद वॉकिंग भी कर रहे हैं, यू कैन से वी आर गोइंग इन दी लीनियर मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये पत्थर गिर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ फॉल होती है, आप ऑब्जर्व करो, जब भी वो फॉल होती है इट गो स्ट्रेट, इट रियली गो स्ट्रेट। कभी भी कोई बॉल ऐसे करके नहीं फॉल हुई है, कभी भी नहीं हुई है, बिकॉज दिस इज द नेचर, राइट। एंड यू कैन ऑब्जर्व कि भाई जब भी कोई चीज़ फॉल करती है वो हमेशा लीनियर मोशन फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आदमी चल रहा है, हालांकि ये अभी एक ही पोजीशन पर है, बट इट्स स्टिल वॉकिंग, लेट्स से इट इज स्टिल वॉकिंग एंड इट इज गोइंग स्ट्रेट, दैट मीन्स इट इज इन द लीनियर मोशन, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स, द मोशन ऑफ अ मूविंग कार, अ पर्सन रनिंग, अ स्टोन बीइंग ड्रॉप्ड, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप डेफिनेटली रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर मोशन को शो करते हैं, ठीक है। अब ये जो लीनियर मोशन होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, देखते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज रेक्टिलिनियर, ठीक है। यहाँ पर आपको शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन along a straight line is called rectilinear motion, means it is in the straight line, लिटरली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्केल से बिल्कुल खींची हुई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप उस पर मूव करते हैं, उस पर कोई मोशन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब दूसरा जो है दैट इज कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई पत्थर फॉल हो रहा है, सो इट इज गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कर्वीलिनियर का, भाई the motion along a curve is called rectilinear motion. Let's imagine कि you hold a thread in your hand, ठीक है। आपने एक एंड उस थ्रेड का अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरा एंड आपने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है, एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ कर्व इन बिटवीन, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे एंड उसके ऊपर कोई एंट अगर चलने की कोशिश करेगी तो एंट कहाँ कहाँ जाएगी, डेफिनेट सी बात है, जहाँ जहाँ थ्रेड होगा वो वहाँ वहाँ जाएगी, सो इट विल मूव इन अ कर्व, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग इन दी कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो वो मूव कर रही है इन दी कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने रोलर कोस्टर राइड किया है, जिसने भी रोलर कोस्टर राइड किया है वो कर्वीलिनियर समझ जाएगा बहुत ईजीली। कैसे, ये जो रोलर कोस्टर्स होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा वेवी स्लाइड्स होती हैं, आप स्लाइड तो करते हो और उस आपका जो भी राइड होता है, जो भी आपका बैठने का स्पेस होता है, वो क्या करते हैं, ऐसे मूव करते चलते अलॉन्ग दी कर्व्स, कभी पूरा सर्कल, कभी कैसे कैसे, पता नहीं कैसे कैसे जो है रोलर कोस्टर को डिज़ाइन किया जाता है। आप एक कर्व को फॉलो करते हो, आपका जो भी सीट है, आपका जो भी कार, जो भी आपका स्पेस है, वो पूरा अलॉन्ग द कर्व चलता है। क्या वो हवा में उड़ के जाता है? नॉट एट ऑल, वो सिर्फ कर्व को फॉलो करता है। जहाँ जहाँ कर्व होगा, जहाँ जहाँ ट्रैक होगा, दैट वुड बी, वो उसको फॉलो करते चले जाएगा। दैट मीन्स दैट इज नोन एज द कर्वीलिनियर मोशन। तो नेक्स्ट टाइम अगर
तुम रोलर कोस्टर में जाओ तो तुम ये बोलोगे दैट यू आर गोइंग टू मूव इन अ कर्वीलिनियर मोशन। ऑलराइट, सो दीज आर द टू मोशन, लीनियर मोशन के टाइप्स हैं ये दोनों के दोनों। नाउ अब हम अपना सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, जो कि हम टाइप्स ऑफ मोशन देख रहे हैं, उसका सेकेंड टाइप दैट इज द रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब कुछ भी, ये होता है रैंडम, रैंडम मोशन कुछ भी मोशन, ठीक है, इसका दूसरा नाम हम रख देते हैं कुछ भी मोशन। अब देखेंगे द मोशन दैट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड डायरेक्शन और पैटर्न इज कॉल्ड रैंडम मोशन। कोई भी इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई भी इसका फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी मोशन कुछ भी होता है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये देखो, बॉल कहीं भी जा रही है, कैसे भी जा रही है, सो इट इज मूविंग इन अ रैंडम मोशन, ठीक है। यू कैन सी दीज, ये छोटी छोटी एंड्स मूव कर रही है, दे डू नॉट फॉलोइंग, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो दे आर इन दी रैंडम मोशन, यू कैन से दैट। देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं, जैसे द मूवमेंट ऑफ अ बर्ड इन फ्लाइट, बर्ड कैसे भी फ्लाई कर सकती है, उसको जहाँ जाना होगा वहाँ चली जाएगी, रैंडम मोशन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। फ्लाइंग ऑफ बटरफ्लाइज इन द फ्री स्काई, बिल्कुल बटरफ्लाई कैसे भी करते, कभी एक फ्लावर पे, कभी दूसरे फ्लावर पे, कभी तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे घूमते रहती है, तो दैट मीन्स इट इज इन द रैंडम मोशन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देख सकते हैं अ हॉकी प्लेयर रनिंग आफ्टर द बॉल। अब बॉल कहीं भी जाती है, इट इज़ सो रैंडम, सो हॉकी प्लेयर अगर उसके पीछे पीछे जाएगा तो दैट मीन्स इट विल बी इन द रैंडम मोशन टू। चिल्ड्रन रनिंग इन अ प्ले ग्राउंड, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रैंडम मोशन का। तो रैंडम मोशन कुछ भी मोशन, वो कुछ भी फॉलो नहीं करता है, कहीं पर भी कैसा भी मोशन होते रहता है, ठीक है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रैंडम मोशन। अब हम थर्ड पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन। देखेंगे पीरियोडिक मोशन, अ मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ इन द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसका मतलब कि भाई एक मोशन किया, बट आफ्टर सम टाइम वी आर रिपीटिंग दैट मोशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जस्ट लाइक अर्थ। हम लोग हर हैप्पी न्यू ईयर तो मनाते ही हैं, हैप्पी न्यू ईयर जो फर्स्ट दिन मनाते हैं हम लोग, है ना। फिर आफ्टर 365 डेज अगेन हम एक न्यू हैप्पी ईयर मनाते हैं, राइट। फिर अगेन 365 डेज अगेन हम एक न्यू हैप्पी ईयर मनाते हैं। दैट मीन्स जो अर्थ है वो आफ्टर अ फिक्स टाइम, आफ्टर 365 डेज अर्थ बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रही है, राइट। दैट मीन्स अर्थ कौन से मोशन कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है, ठीक है। नाउ सी सम एग्जाम्पल्स, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अर्थ है ये बार बार अपना मोशन रिपीट कर रही है, दैट मीन्स इट इज इन द पीरियोडिक मोशन। दूसरा अच्छा एग्जाम्पल पेंडुलम। पेंडुलम को क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, बट देखेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक थ्रेड होता है और उसके जो नीचे होता है ये दिस इज कॉल्ड बॉब, ठीक है। और ये बॉब मतलब कोई भी एक छोटा सा स्फेयर होता है, बॉल होती है, मेटालिक बॉल यू कैन से, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉब। मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। दिस इज, अब ये रुक ही नहीं रही है तो कैसे बताएंगे, ठीक है। देखो सिंपल पेंडुलम जो होता है, वैसे हम इसके बारे में सीखेंगे हमारे लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर में एक्चुअली। सिंपल पेंडुलम के अंदर कौन होता है, थ्रेड, और थ्रेड से कौन कनेक्ट होता है, बॉब, ठीक है। और ये जो बॉब होता है दिस इज दी व्हाट, एक स्फेरिकल बॉल, ठीक है, एक स्फेरिकल मेटालिक बॉल, यू कैन से दैट, ठीक है। तो दैट इज दी सिंपल पेंडुलम। और देखो ये बार बार राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और कंटिन्यूसली ये मूव करते रहता है। दैट मीन्स इट इज इन दी पीरियोडिक मोशन, बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज दी periodic motion, right? So let's move on to the types of periodic motion. यहाँ पर हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, मे बी 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा नंबर 1 टाइप है दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जिसमें अच्छा सा एग्जाम्पल अर्थ का है कि भाई वो बार बार सर्कुलर मोशन करती है सन के चारों तरफ, दैट मीन्स इट इज द पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का नंबर 1 टाइप हम लोग देख सकते हैं सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या होता है, अ पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। यहाँ पर फिक्स पॉइंट, सन और अर्थ के केस में फिक्स पॉइंट कौन हुआ, सन,
ठीक है, ऑन दी सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसका मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ बार बार मूव करना, दैट विल बी व्हाट कॉल दी सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि मोशन ऑफ द टिप ऑफ द क्लॉक्स आर्म, motion of the moon around the earth, and now see the car is moving around a fixed point again and again, so this is called a circular motion। ठीक है, यहाँ पे हम एक फिक्स पॉइंट को फॉलो आउट कर रहे हैं, उसके चारों तरफ बार बार सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज दी सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं, जिस तरह ये ब्लू जो बॉल है वो बार बार रोटेट कर रही है रेड के चारों तरफ, सो इट इज़ मूविंग अगेन एंड अगेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। रिमेंबर, सर्कुलर मोशन में ये ज़रूरी है कि आप एक फिक्स पॉइंट की बात करें, अबाउट अ फिक्स पॉइंट जिसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करते रहती है। ठीक है, सो दिस इज द वन टाइप। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन। द टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिक्स पाथ है तो वो पूरा सर्कल करने की बजाय वो सिर्फ क्या करिए, टू एंड फ्रो मूव करिए। बहुत अच्छा एग्जांपल हमने देखा तभी, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, दैट इज ट्रू, बट ये क्या कर रहा है, बहुत ही पूरा सर्कल को करने की बजाय ये आगे पीछे मूव कर रहा है, दैट मीन्स टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा और एक एग्जाम्पल है दिस, ये जो स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग भी टू एंड फ्रो ऐसे मूव करती है। ठीक है, हमने इसको वर्टिकल बना दिया है तो अब ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव कर रही है, सो इट इज़ अगेन एंड अगेन चेंजिंग इट्स पाथ, अगेन एंड अगेन मूविंग इट्स पाथ एंड रिपीटिंग एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स है। द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ स्विंग, जैसे आप झूला झूलते हैं, राइट, तो जो स्विंग होता है वो भी टू एंड फ्रो मूव करता है, तो दैट मीन्स कि उसमें भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, तो आप कहीं भी टू एंड फ्रो मोशन को देखें तो उसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारा फोर्थ मोशन, दैट इज कॉल्ड द कंबाइंड मोशन। वाई कंबाइंड का मतलब तुम्हें समझ में आता है कि हमने दो मोशंस को जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया है, हमने क्या किया है, दो मोशंस को जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंबाइंड मोशन। ठीक है, नाउ सी, व्हेन अ बॉडी पॉजेस टू टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, रिमेंबर सेम टाइम पर टू टाइप्स ऑफ मोशन वहां पर हैं। ठीक है, देन इट इज सेड टू हैव कंबाइंड मोशन। ठीक है, अब कंबाइंड मोशन डेफिनेट सी बात है कि दो तीन मोशंस को हमने एड ऑन कर दिया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, व्हील, देखिए दिस इज रोटेशन। ठीक है, एक ही जगह पे बार बार रोटेट कर रहा है, दिस इज ट्रांसलेशन, हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन, सो इट इज गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट वी गेट एज अ रिजल्ट, वी गेट दिस रोलिंग। हर जो टायर मूव करते हैं, बसेस के, कार्स के, बाइसाइकिल्स के, स्कूटीज़ के, बाइक्स के, कार जो टायर जब रोटेट होते हैं तो वो दो तरीके के मोशन कर रहे होते हैं। नंबर वन कि भाई पहले तो वो सिर्फ रोटेट करते हैं, ठीक है, दे आर रोटेटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, तो वो बार बार रोटेट कर रहे हैं। नंबर टू, दे आर ऑल्सो गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी तो गाड़ी आगे मूव हो रही है, राइट, सो दे आर हैविंग टू मोशंस एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रोलिंग वन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन, you can see it here very well। ठीक है, see this is the rotation, you can observe it from here कि भाई वो अपना हमारा डे एंड नाइट भी तो होता है, तो ये डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है, जब अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे एक रोटेशन लेती है, राइट, एंड वी हैव ईयर्स, और ईयर्स कब होते हैं, जब सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो रोटेट करती है, दैट मीन्स दो मोशंस एक साथ हो रहे हैं। नंबर वन, खुद के एक्सिस पे रोटेट करना है ना, एंड नंबर टू, सी यू कैन ऑब्जर्व कि ये खुद के एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और ये सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है, दैट मीन्स इट इज इन द कंबाइंड मोशन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड मोशन करती हैं, जैसे यू कैन से द व्हील ऑफ अ मूविंग कार रोटेट एज वेल एज मूव फॉरवर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन यू रोल अ कॉइन ऑन द टेबल, इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ एज वेल एज मूव फॉरवर्ड। जब कभी भी आप एक कॉइन को रोटेट करेंगे टेबल पे तो भी वो कंबाइंड मोशन ही करेगा। ठीक है, नाउ यू नो
know the combined motion, right? So this is it. This is the lecture 4. This was the lecture 4 definitely, and you need to write at least 2 examples for each types of motion. This is your homework. Do write the each types of motion, and for every motion you have to write 2 examples on your own. Observe it from your surrounding. ठीक है, और साथ ही साथ मैं तुम्हें होमवर्क बता देती हूँ भाई। आज का होमवर्क क्या है तुम्हारा, देखेंगे। आज का होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का तुम लोग क्वेश्चन करोगे। लेट मी सी इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 16 to 19, एंड आपको करना है एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7. That's the homework for today, all right, and that's all you have to do. So आपको 2 homeworks मिले हैं, ये questions करने हैं, as well as आपको क्या करना है, आपको हर एक type of motion का क्या करना है, 2 examples खुद के surrounding से observe करने हैं और note करने हैं, ठीक है, and then submit your homework through the Google Classrooms, all right, and that will be the lecture 5. सिर्फ एक lecture 5 is remaining, हम लोग जिसमें distance, speed and time को study करेंगे, ठीक है। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and definitely do share it with all the people. Do spread the word. So thank you so much.